All right, guys, can you hear me? I think now I am back online. All right, wait, let me share the screen again. ओके ठीक है, तो अब हम इन्वर्टर के भरोसे हैं जब तक इन्वर्टर चल रहा है. Okay, can you see the screen now as well? All right, ठीक है. So yeah, as I was saying that post Heisenberg's uncertainty principle, this concept of orbit is now discarded, and the new concept of probability, ठीक है, that is introduced. ठीक है. So this is something which will now help us move towards the next model of atom, which is the quantum mechanical model of atom. Now किस तरीके से we will proceed in this next model of atom, वो आप लोग observe करना. My approach would be to talk about the results first rather than getting into the mathematical derivations. So as you would have been noticing, ठीक है, that when we are transitioning from the classical model to the quantum mechanical model, ठीक है, हम लोगों ने बीच में डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस भी पढ़ा, हमने अभी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ा. The thing is that I am not able to get into the details of derivation part. I am not able to get into the depth of the mathematical derivation, because the maths that goes behind this is something which is beyond our scope. तो इसी तरीके से जब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें भी the approach with which we are going to study is going to be of a similar nature, that we are going to talk about results first, understand those results, and then post understanding those results, make sure that the numerical concepts are something that we are able to grasp well, and then towards the end I would try to give you some idea or some information about how to better understand this. Okay. All right. Now, yes, I will talk about these doubts also. Okay. But before that, let me quickly also talk about one or two questions from Heisenberg's uncertainty principle. So let me give me just 1 second. I will take one or two questions from Heisenberg's numerical questions from Heisenberg's uncertainty principle and then move forward. ठीक है. In the meantime, जब तक बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, I will take your doubts also. I think we were talking about certain doubts before the power cut happened. Okay, so give me just 1 minute. Let me put up that question. Okay. So I think this would be a good question to work with. Try करो आप ये question. In the meantime, हाँ हर्षल, क्या डाउट था तुम्हारा? लेट मी अनम्यूट यू. हाँ बोलो. Sir, I just wanted to ask that up where we said that for bigger objects this does not work, sir, but for that we change the velocity by 1 meters per second, right? So that is a significant change, right? नहीं. Okay. This, when I said, first of all, let me correct your statement.
Heisenberg's uncertainty principle works for all scales, small scale, large scale, सबके लिए. It is applicable at all scale. ठीक है. Now Okay, sir. at larger scale, what happens is कि उसका इतना significant impact नहीं आता है. जैसे ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी करने वाला हूँ, इसमें आप नोटिस करना कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है एंड हम लोगों को मेजरमेंट इन वेलोसिटी का जो एरर मिला वो 0.1% मिला. ठीक है, ये हमने 1% मान लो या 0.1% मान लो, ये हमें एरर मिला. ठीक है, Yes, व्हाइल sir. डूइंग आवर कैलकुलेशन. तो इससे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिनिमम कितना रहेगा वो मैं आपको कैलकुलेट करा रहा हूँ. एंड आप ऑप्शन देखोगे तो दे आर सो स्मॉल दैट दे डू नॉट मैटर इन रियल लाइफ. Okay, sir. और So the velocity is also so small only. हाँ, मतलब द वेलोसिटी, सी हम लोगों ने कुछ मेजरमेंट करा, हमने किसी तरीके से वेलोसिटी का मेजरमेंट करा. ठीक है, एंड उसमें ये अनसर्टेनिटी आया. ठीक है, Oh, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल रहा है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से तो ज्यादा ही होगी. okay, sir. Got it. ठीक है. आंसर आया इसका किसी का? हाँ गौतम, अब हम लोग ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड करने वाले हैं. हम लोग ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. सो आई विल टॉक इन डिटेल. थोड़ा सा मैं पहले उनको डिफरेंशिएट करूंगा आपके लिए, दैट व्हाट इज ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है. हाँ राइट आर्यश, डेल्टा वी इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, सो इसमें डी ऑप्शन आंसर आ रहा है आप लोगों का. राइट, सो हाउ डू वी वर्क ऑन दिस, यहाँ पर ऑब्जर्व करना इसका सोल्यूशन कैसा रहेगा. मास गिवन है आपको 200 ग्राम्स, ऐसा यूनिट्स में ले लेते हैं इसको, तो दिस विल बी 0.2 kg. स्पीड इसका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड. राइट, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0.1%. दैट मींस डेल्टा वी कितना हो गया, 0.1% ऑफ v. तो 0.1 by 100 into 10. Right, so this will come out to be 10 raised to the power of minus 2 meter per second. This is the delta v value. And अब आपसे पूछा जा रहा है what will be the uncertainty in the measurement of position. So as per HUP, delta x dot delta p is greater than equal to h upon 4 pi. Okay, so what Heisenberg's uncertainty principle is saying is that even if you get the best possible way in which you can do measurement, okay, there is no human error and you have world class or whatever, matlab the best of all the instrument possibles, still there will be at least this much uncertainty. इससे ज़्यादा भी हो सकती है but इससे कम नहीं होगी. Greater than equal to का मतलब यही हो गया that the uncertainty in position has to be greater than or equal to this value, 6.626 into 10 raised to the power of minus 34 upon 4
इंटू 3.14 इंटू 2 और इसको 10⁻31 बोल देते हैं, वो 10⁻³ और 10⁻31। ठीक है, तो ये रफली इफ यू नाउ मिक्स एंड मैच विद द ऑप्शंस, तो ये आई थिंक डी ऑप्शन से मैच करें। मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट पावर ऑफ 10 ही नोटिस कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ 10 काफी दूर दूर है, तो ये 10⁻32 से क्लोज इनफ रहेगा। यानी कि इतना एरर तो आएगा ही सही, इससे ज्यादा भी हो सकता है बट इतना मिनिमम एरर होगा ही सही। ठीक है, अब रियल लाइफ में अगर एक टेनिस बॉल सेंटीमीटर्स की साइज में है तो इतना एरर इज समथिंग विच इज नॉट ऑफ एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस टू अस, so we can ignore it। ठीक है, हाँ राज कुछ पूछना है, आपने हैंड रेज किया है या गलती से हो गया? Sir, I'm हाँ, unable to send messages. Chat is disabled लिख के आ रहा है। chat is disabled to other participants, मतलब आप लोग मुझे तो मैसेज कर ही सकते हो। नहीं, it's showing that you are not in the meeting. I am not in the meeting। Yeah. अरे बाप रे, तो एक्चुअली होगा क्या ना, वो पुराना नाम से मेरा नाम जो होगा वो अब ब्लू की जगह ग्रे हो गया होगा। अब आप एक्चुअली दोबारा मेरे नाम पे क्लिक करके मुझे दोबारा चैट भेजो तो आएगा। Sir, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? पता नहीं। Let me try one more thing. Let me actually allow chat for everyone and then I'll okay, everyone publicly and privately। ठीक है, now you can try, अभी chat भेजो सबको एक बार। ठीक है, अभी आई थिंक कोई भी किसी को भी चैट भेज सकता है। नाउ लेट मी डू इट होस्ट ओनली अगेन। अब वापस भेजो, ट्राई करो राज। Sir, still not. अरे तुम बाकी लोगों को भेज पा रहे हो किसी को? किसी को नहीं, ये आपका ही नाम बस मतलब ऑप्शन में। नहीं यार, बाकी लोग तो मुझे भेज पा रहे हैं, मतलब अभी प्रशस्त ने मुझे आंसर भेजा। हाँ हाँ सर, हो गया हो गया। ठीक थैंक है, यू सर। ओके ना। अच्छा, अब ऑब्जर्व करना। सो ये मैंने एक न्यूमेरिकल कराया है छोटा सा आपको, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड यू नो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। न्यूमेरिकली हम लोग क्वेश्चंस में कैसे देखेंगे, तो आप देखना बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, इसी तरीके से बुकलेट में क्वेश्चंस रहेंगे, आपको इसी रिलेशनशिप को यूज करना है। ठीक है, एंड यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन, द डेटा ऑफ द क्वेश्चन की क्या दिया हुआ है एंड क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, sometimes there can be slightly more tricky questions यहाँ पर ऑब्जर्व करना, and those tricky questions would be something in this manner wherein you might have to relate uncertainties between two variables that are not linearly related to each other। ठीक है, what I mean by this is थोड़ा सा मैथ्स है ये, this is nothing to do with chemistry, this is more of maths। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना एज अ स्मॉल टॉपिक, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन अनसर्टेनिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना से इफ y इज इक्वल टू kx, ठीक है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y is equal to kx, then I can relate the uncertainties between the two as y is equal to k times delta x, delta y is equal to k times delta x। ठीक है, जो सिंपल आपस में रिलेटेड वेरिएबल्स है y एंड x, उनकी अनसर्टेनिटी भी इस तरीके से रिलेट हो जाएगी। हाउएवर इफ यहाँ पर नोटिस करना y इज इक्वल टू kx², ठीक है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, समथिंग ऑफ दिस नेचर, देन you can't say that delta y will be equal to k delta x का स्क्वायर। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा, this will be completely wrong।
ठीक है, इनफैक्ट करेक्ट रिलेशनशिप क्या रहेगा वो मैं लिख के बता देता हूँ. डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू 2kx डेल्टा x. दिस इज व्हाट द करेक्ट रिलेशनशिप वुड बी. हाउ? कैलकुलस. ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व करना, इसके पीछे थोड़ी सी मैथ्स लग रही है. जस्ट y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड डी वाई इज इक्वल टू डी. डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2kx, और यू कैन राइट दैट डी वाई इज इक्वल टू 2kx dx, और यू कैन सिंपली राइट dy एज डेल्टा y. ठीक है, ये कब एप्लीकेबल रहेगा, जब एरर छोटा हो, डेल्टा x इज मच मच स्मॉल देन x एंड डेल्टा y इज आल्सो मच मच स्मॉल देन y, तभी एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% अनसर्टेनिटी है उसके लिए अप्लाई कर दिया. 1%, लेस देन 1% अनसर्टेनिटीज है, उनके लिए आप ये सब अप्लाई कर सकते हो. इस तरीके से आप अनसर्टेनिटीज बिटवीन टू वेरिएबल्स रिलेट कर सकते हो. ठीक है, तो अभी मैं कोई भी आपको दो वेरिएबल दे दूं, उनके बीच में आप अनसर्टेनिटी इस तरीके से बता सकते हो. ठीक है, राइट. फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू अ स्मॉल क्वेश्चन that for a particle of mass m and velocity या speed बोल लो. ठीक है, मास m है एंड स्पीड v है. ठीक है, अनसर्टेनिटी in speed is delta v. Okay, what I'm asking you is to determine the uncertainty in its kinetic energy. ठीक है, क्या छूट गया अर्नव तुम्हारा, ये वाला पार्ट? क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, हाँ, अब इसको सॉल्व करो. काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट कर लो, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में भी क्या अनसर्टेनिटी रहेगी वो भी निकालना. के वाज सम कांस्टेंट, सही है, मतलब y इज इक्वल टू के एक्स जो मैंने ऊपर लिखा था उसमें के इज सम कांस्टेंट. वेयर के इज अ कांस्टेंट. क्या क्या आ रहा है? हाँ, श्रव्या का सही है, हृदय, साकेत, हाँ, सबका ही सही आ रहा है ऑलमोस्ट.
नहीं हर्षल, आपका डाउट नहीं समझ में आया मुझे. लेट मी फर्स्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपका डाउट लेता हूँ. राइट, सो एम वी डी वी आ जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. राइट, सो इफ आई डू डी के ई बाई डी वी, तो क्या हो जाएगा? हाफ एम इंटू टू वी, है ना. ये टू और टू कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? डी के ई इज इक्वल टू एम वी डी वी. और यू कैन से डेल्टा के ई is equal to mv delta v. This is how uncertainty in kinetic energy will be determined. Uncertainty in de Broglie wavelength, ये क्या रहेगा? हाँ राइट. तो इसमें क्या रहेगा? हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें निकालना आता है. क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. राइट, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, डी लैम्डा बाई डी वी. तो ये क्या बन जाएगा? एच बाई एम तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, और वन बाई वी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस वन बाय वी स्क्वायर. राइट, सो डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एच बाई mv square into dv, और you can say delta lambda is equal to minus h by mv square delta v. इस तरीके से माइनस साइन क्या शो करेगा? ये एक्चुअली ऐसे शो करेगा क्योंकि बिकॉज यहाँ पे लैम्डा और v का इनवर्स रिलेशनशिप था. ठीक है, दैट इज व्हाई दिस माइनस साइन केम इन. तो ये आपको, अगर मैं नॉन लीनियरली रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप दे दूं, तो आप उनके अनसर्टेनिटीज को रिलेट करना आप सीख गए. ठीक है, आई होप दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विद एनीवन नाउ. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो इस पे भी कुछ एक दो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन देम. डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला पार्ट देखो ना, बस क्या करा, ये तो करा, डिफरेंशिएट ही तो करा. मुझे लैम्डा और वी का रिलेशनशिप पता है, और मुझे डी लैम्डा और डी वी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बस. माइनस साइन कैसे आया भाई? मैथ्स नहीं आती आपको? डेरिवेटिव ऑफ ऐसे वन बाय एक्स क्या होता है? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है ना. ये तो पढ़ा होगा. वन अपॉन एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, या एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस वन. तो यहाँ पर एन की वैल्यू को माइनस वन पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया रहे थे? ऑल राइट, सो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्या पूछ रहे हो दीप? वी कैन नॉट डू दिस बाय के ई वाला. हाँ, उससे भी कर सकते हो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा. तो समटाइम्स व्हेन यू हैव सर्टेन वेरिएबल्स जिनका रिलेशनशिप सिंपल सा नहीं होता है, उनका अनसर्टेनिटी इस तरीके से हम रिलेट करते हैं. ठीक है, नाउ this takes up this topic of Heisenberg's uncertainty principle. Let me take you to the next topic now, which is the quantum mechanical model of atom. Okay, but before we get into the details of quantum mechanical model of atom, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको एक कनेक्टेड वे में लेकर जाऊंगा. ठीक है, so we have spoken about the concept of orbit being changed to now the concept of orbital. तो उसी पर हम लोग अब अपना अंडरस्टैंडिंग आगे का डेवलप करेंगे. ठीक है, सो लेट्स
start that discussion. And in that, let me quickly first differentiate between orbits and orbitals. So let me put the next heading. Quantum mechanical model of atom. Okay, so quantum mechanical या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं. The reason is because this model was developed keeping in mind the wave nature of matter. इसके पहले जितने भी मॉडल्स थे, they were all based on the particle nature, but in order to know better, we have to also take into account the wave nature. Now, before getting into the model, as I said, okay, let me put a note over here that our focus will be on results. So किस तरीके से हम लोग इन रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, आप ऑब्जर्व करना. So after HUP, concept of orbit got discarded and the concept of probability was accepted. ये क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, just regions around the, or I should in fact let me put it in this way, and the concept of orbitals was introduced. Now, what is it that we understand about orbitals? Let me differentiate it with orbits to help you understand this better. So let me compare the concept of orbits and orbitals. ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, ऑर्बिट क्या था? Orbit was a well-defined path of an electron around the nucleus. ठीक है, well-defined circular path around the nucleus. What is orbital? This is a three-dimensional region, okay, around nucleus where electron is likely to be found. Kitna likely? Typically the probability assigned is greater than 90%. There will be a more than 90% chance of the electron being present in a orbital. ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है, मोशन वाज described in a plane. ठीक है, या फिर I could say that two-dimensional or planar motion of electron. ठीक है, revolutions हो रहे थे इलेक्ट्रॉन के.
अराउंड न्यूक्लियस, इस तरीके से ऑर्बिट्स के अराउंड बोला जा रहा था। बट यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, मोशन और a defined path of an electron is not described, as it violates Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे कि न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, लेट्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन है, ओरिजिन पर न्यूक्लियस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, एंड ये न्यूक्लियस है एट द ओरिजिन। तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड प्रेजेंट रहेगा, बट उसका मोशन कैसा रहेगा, ठीक है, वी विल नॉट नो दैट, ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब दैट मोशन, ठीक है, इट विल बी प्रेजेंट इन द रीजन, ठीक है, बट वो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में से लाइकली टू बी फाउंड है, ठीक है, बट कहां पर रहेगा, कैसे मूव करेगा, कैन नॉट डिस्क्राइब। सो ऑर्बिट से ऑर्बिटल्स का शिफ्ट समझ में आ रहा है आपको, दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। नाउ डेफिनेटली we are now quite interested in understanding these orbitals. We are quite interested in understanding what will be the shape and size and visualization of these orbitals, these regions around the nucleus where electron is likely to be found. So यहाँ पर notice करना, let me bring that up as our topic of interest, orbitals, ठीक है। नाउ कैसे इनको डिराइव करा, अगेन एज आई सेड उनकी डिटेल में हम लोग नहीं जा पाएंगे, वी विल ओनली फोकस ऑन द रिजल्ट्स। सो यहां पर इसका इंट्रोडक्शन ऑब्जर्व करना, दैट अपॉन सॉल्विंग द Schrodinger equation, ठीक है, who is Schrodinger? Schrodinger is one of the key scientists who helped develop the quantum mechanical model of atom. So he did some analysis, he presented some equations, okay, right now I will not be able to get into the details of it, पहले मैं रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करूंगा, तो ध्यान से सुनना, दैट अपॉन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं पता है हमारे लिए, श्रोडिंगर इक्वेशन राइट नाउ इज अ ब्लैक बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर जिसको मैथ्स आती है उसने वो मैथ्स करी और उससे कुछ आउटपुट निकल गया, और वो आउटपुट जो है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वो रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द अप्रोच विद विच इफ यू विल गो यू विल बी एबल टू मेक सम पीस टू बिगिन विद, एंड जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको ये रिजल्ट्स समझ में आने लगेंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, तब मैं वापस से आपके साथ में डिस्कस करूंगा द फाउंडेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, दैट हाउ इट गॉट डेवलप्ड। अभी के लिए दैट result is going to be what is of utmost importance. So upon solving Schrodinger equation, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, we get results of many such possible regions
ठीक है, जिनको हम लोग ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं, where electron is likely to be found. ठीक है, जैसे आपने नोटिस किया था बोर्स ऑर्बिट में भी कैसा आया था, बोर्स ऑर्बिट में we got many orbits in which the electron is or electron can be present. Ground state में, natural state में it chooses to be in n equal to 1 orbit, but it can be present in higher orbits also. ठीक है, उसी तरीके से जब श्रोडिंगर इक्वेशन भी सॉल्व करी जाती है, ठीक है, हाँ मैं ब्रेक दे रहा हूँ, गिव मी 5 मिनट्स. सो उसी तरीके से जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी जाती है, देन वी गेट रिजल्ट्स ऑफ such possible regions or orbitals where electron is likely to be found. ठीक है, कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन नहीं आता, देयर आर मेनी पॉसिबल रीजन्स दैट कम. सो इन रीजन्स के बीच में, ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है, दैट द इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड इन देम. हाउएवर these regions they differ from each other. However, these regions differ from each other in terms of shape, size and direction. Okay, we say that directional orientation. So what these shapes are, what these directional orientations are, इनका visualization is something which I will want you to understand and remember first. ठीक है, तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, एक क्विक ब्रेक लेते हैं. ठीक है, अभी जैसे 12:45 हो गया है, तो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक and then we'll resume and then I'll talk about these orbitals and their visualizations. ठीक है, so यहाँ पर let's resume in 10 minutes. Let's resume at 12:55 p.m. ठीक है, all right then. In the meantime किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. ठीक है, तो मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ, देन रिज्यूम करता है.
All right, I hope everyone is back. ठीक है. So now let me use the magic of copy paste. मैजिक नहीं चला. चला अभी तो कहाँ चला. हाँ. All right. So as I was talking about that हम लोग अब orbitals के ऊपर focus कर रहे हैं, and we understood that okay, these are regions in which electron is likely to be present. ठीक है. So where are or what are these regions? How do they look like? ठीक है. So primary focus here is visualization. ठीक है. कैसे आया? Don't get into how. ठीक है. Right now, because as I said, I will not be able to get there for you. अभी के लिए कुछ बड़े लोग श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, डायरैक, मैक्स बॉर्न, इन सब ने बहुत सारी मैथ्स करी, उसके लिए उनको बहुत सारा नोबेल प्राइज भी मिला. एंड एज अ रिजल्ट दे गेव दीज रिजल्ट्स. ठीक है. सो राइट नाउ वी आर फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दीज रिजल्ट्स of how these regions are where the electron are likely to be found. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना that based on the shape and directional orientation, ठीक है, following are the important types of orbitals. Important types क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया that there are many orbitals that are possible. ठीक है. जैसे around the orbit, around the nucleus there were many orbits, n equal to 1 2 3 4 6 तक चले जाओ, 10 तक चले जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. These are infinite orbits. ठीक है. उसी तरीके से when you have orbitals, there are many possible orbitals in which electron can be found. ठीक है. तो हम लोग कुछ important orbitals का डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट रहेंगे. ठीक है. जो अर्थ पर एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना 100 120 के आसपास तक हम लोगों ने एलिमेंट्स डिस्कवर करे हैं. तो एक एटम के अराउंड जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें अर्थ पे मिल रहे हैं, उनको अगर हम इन रीजन्स में फिट करना चाहेंगे तो उसमें कौन से ऑर्बिटल्स इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अभी के लिए फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं. ठीक है. ऑल्दो द रिजल्ट्स आर इनफाइनाइट. तो पहला ऑर्बिटल देखना, द फर्स्ट ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज एस ऑर्बिटल. ठीक है. बेस्ड ऑन द शेप. इसका शेप कैसा है? इट इज स्फेरिकल इन नेचर एंड ये 3D में है. ठीक है. एज यू कैन सी यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ओरिजिन पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के अराउंड देयर इज द स्फेरिकल रीजन. इन दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 90%. ठीक है. सो विद इन दिस रीजन, ठीक है, इनसाइड दिस रीजन वॉल्यूम, द इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड. ठीक है. इट इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन. स्फेरिकल शेप का मतलब यही होता है that it has no directional orientation, it is uniform in all directions. ठीक है. ये समझ में आया आपको s ऑर्बिटल? हाँ बोलो राज. अरे गायब हो गया, मुझे लगा कुछ कहने वाले थे इसलिए मैंने हैंड रेज किया. हाँ हर्षल कुछ कहना चाह रहे हो? No, so I had doubt like previous के लिए, वो जो बोर मॉडल के लिए डाउट था मेरा. हैंड ऊपर रह गया.
हाँ सर। And सर वो बोर मॉडल में लाइक we know the distance, but do we know the time in which it travels that much distance? नहीं Sir, then how can we find the speed? Like, speed as in so we told that we discard the Bohr's model because in that we told we can find the distance and the speed. हाँ तो अगर टाइम ही नहीं पता है तो how can we find the speed? नहीं, हमें स्पीड ऑफ, तुम टाइम किसका पूछ रहे हो मतलब? ओके, Time of the distance traveled. टाइम ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल तो पता है ना, क्योंकि हमें स्पीड पता था ना, हम लोगों ने आर का और स्पीड का रिजल्ट दोनों निकाला था ना बोर्स मॉडल में। वी सेड ना दैट दिस इज द पोजीशन, इस पोजीशन पे सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड भी पता है, राइट? Okay, sir. क्योंकि अभी उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता है, तो उसका डायरेक्शन भी पता है, तो डायरेक्शन भी पता है और Speed भी पता है. मैग्नीट्यूड भी पता है, तो हमें वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी पता है तो हमें मोमेंटम पता है, तो पोजीशन भी पता है और मोमेंटम भी पता है, वो नहीं चलेगा ना। हाँ, okay, sir. Thank you. हाँ भाविक, क्या कह रहे हो? Sir, are we presenting orbitals in SPDF format? यस वी आर। अच्छा, okay sir. ऑलराइट, सो पहला टाइप ऑफ ऑर्बिटल आपने देखा, बेस्ड ऑन इट्स शेप इट इज एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, अराउंड द न्यूक्लियस ओनली देयर आर अनदर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जिनका शेप कुछ इस तरीके से रहता है, एक ऊपर लोब एक नीचे लोब, इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं? डम्बल शेप, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज डम्बल शेप, ठीक है। देयर आर टू लोब्स, एक ये ऊपर की तरफ लोब है और एक ये नीचे की तरफ लोब है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है ये। इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो अराउंड द न्यूक्लियस you can have electron to be found in these or this kind of region also, ठीक है। and based on directional orientation, क्योंकि s orbital से क्या था, s orbital spherically symmetrical था, but this can have directional orientation। यहाँ पे notice करना, based on directional orientation there are 3 types. It can be oriented along x axis, we call such orbital as px. It can be oriented along y-axis, we call such orbitals as py, or the orbital can be oriented along z-axis and we call it pz, ठीक है। This is also a possible region in which electron can be found, ठीक है। ये समझ में आया? देन हाँ, एक मिनट, कुछ डाउट है सर्वेश तुम्हें? बोलो। Sir, what is directional orientation? Directional orientation is a particular direction in which the probability is concentrated। जैसे s ऑर्बिटल था, ठीक है, s ऑर्बिटल में डायरेक्शनल ओरिएंटेशन नहीं है, इसमें the probability is uniform in all directions, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं मैथमेटिकली जाऊं इसमें, मान लो अगर कोई पॉइंट a,0,0 पर प्रेजेंट है, ठीक है, और कोई पॉइंट 0,0, a पर प्रेजेंट है, ठीक है, as long as the distance from the nucleus is same, the probability of finding electron would be same. There is no dependence on direction, ठीक है। This is what was the case in s orbitals, ठीक है। There is no directional dependence, but p orbitals में कैसा है? There is directional dependence, ठीक है। मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कहीं यहां पर फॉर अ px ऑर्बिटल,
ठीक है, फॉर अ पी वाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस वाई एक्सिस के अलोंग ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रैंडमली समवेयर से हेयर और हेयर और हेयर, यहाँ पर नहीं मिलेगा, मतलब बहुत कम चांस रहेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, सो इसी तरीके से p ऑर्बिटल्स जो है इनका इस तरीके का डंबल शेप होता है एंड इट वाज फाउंड दैट you have 3 types of p orbitals. One can be oriented along x axis, one can be oriented along y axis, and one can be oriented along z axis. ठीक है, these are 3-dimensional regions. ठीक है, हाँ मृगांक, x axis, y axis, z axis are all mutually perpendicular to each other ना, ठीक है, and all these regions, हाँ दीप आपका वैलिड डाउट है, मैं थोड़ी सी देर में इस डाउट को एड्रेस करूंगा, ठीक है, आप होल्ड करके रखना। आई वुड वांट टू एड्रेस दिस डाउट बिफोर वी क्लोज टुडेज लेक्चर, ठीक है, इट्स अ गुड डाउट। तो ये p ऑर्बिटल समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अब नोटिस करना थर्ड टाइप विच आर कॉल्ड एज d ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये मत पूछना मुझसे कि ये SPDF क्यों नाम रखे, कुछ और क्यों नहीं रख सकते थे, मतलब अभी क्या होता है, नाम रखने का काम जो लोग डिस्कवर करते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है, ऑल्दो देयर इज अ बैकग्राउंड टू दिस आल्सो, S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffuse, इनके कुछ बैकग्राउंड्स है बट नॉट समथिंग ऑफ रेलेवेंस फॉर अस राइट नाउ। ठीक है, तो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट कि ये SPDF नाम ही क्यों दिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब you would have had a similar doubt जब आपने बोर्स मॉडल पढ़ा होगा कि ये ऑर्बिट का नाम KLM से क्यों स्टार्ट करा, मतलब who decided K से स्टार्ट करना है, someone decided। ठीक है, don't be bothered about it, it doesn't matter in terms of conceptual understanding। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये ऑर्बिटल्स के जो नाम है SPDF एंड सो ऑन सो फोर्थ रहेंगे। तो अब ये d ऑर्बिटल्स के बारे में आप नोटिस करना, ये d ऑर्बिटल्स का शेप जो होगा इसमें ऐसे डबल डंबल होगा। ठीक है, दो जैसे p ऑर्बिटल्स आप बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे दो लोब्स आमने सामने एंड फिर दो लोब्स और प्रेजेंट होंगे परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस लोब्स। ठीक है, तो टोटल ऐसे 4 लोब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 4 बलून्स आप बोल सकते हो। ठीक है, 3 डायमेंशनल होंगे ये 3 डायमेंशनल रीजन, इसको हम लोग डबल डंबल बोलेंगे। एंड यहाँ पर आप नोटिस करना 5 टाइप के d ऑर्बिटल्स मिलते हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन। ठीक है, नाम इनके नोटिस करना, एक होगा DYZ। DYZ कैसा होगा, YZ प्लेन में। ठीक है, ये आप नोटिस कर रहे हो YZ प्लेन के अंदर ये ऐसे 4 बलून्स रखे हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कहां पर है, न्यूक्लियस इज अगेन एट द ओरिजिन। ठीक है, न्यूक्लियस एट ओरिजिन। ठीक है, एंड YZ प्लेन में ऐसे 4 बलून्स रखे हुए हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट है इन विच इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड। ठीक है, तो ये एक d ऑर्बिटल हो गया, इसको हम बोलेंगे DYZ ऑर्बिटल। ठीक है, नोटिस करना DXZ ऑर्बिटल भी होगा। DXZ ऑर्बिटल कैसा रहेगा, सेम एज द प्रीवियस ऑर्बिटल बट दिस टाइम इट इज प्रेजेंट इन द एग्जैक्ट प्लेन। ठीक है, 2D नहीं है बट ऐसा आप मान लो कि एग्जैक्ट प्लेन में रेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो एग्जैक्ट प्लेन होगा दैट विल बी कटिंग अक्रॉस ऑल दीज 4 लोब्स। ठीक है, इफ आई हैव गुड इनफ ड्राइंग तो मैं आपको ऐसे बताता कि ये एग्जैक्ट प्लेन क्या है, इन चारों के थ्रू पास हो रहा होगा। ठीक है, 3D में है ये लोब्स। सिमिलरली यू हैव DXY।
dxy में कैसा रहेगा, ये टॉप राइट कॉर्नर पे फोकस करना, dxy ऑर्बिटल कैसा रहेगा इन दिस xy प्लेन में, ठीक है। xy प्लेन में ये हमारे लोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दीज लोब्स विल बी बिटवीन द एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच में रहेंगे ये लोब्स, 3 डायमेंशनल रहेंगे। सिमिलरली देयर विल बी, ऑब्जर्व करना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी डबल डम्बल है और xy प्लेन में है, बट थोड़ा सा अंतर है। dxy और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो ये लोब्स हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट बिटवीन एक्सेस, ठीक है, x और y एक्सेस के बीच में प्रेजेंट है, रीजन्स वेयर द इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड। यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे इनके मिलने के चांस होंगे, दे विल बी अलोंग द एक्सिस, अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये आप देखोगे x एक्सिस के अलोंग एक डंबल है और y एक्सिस के अलोंग एक डंबल है, ठीक है। एंड देन द फिफ्थ, which is quite different from the other four, is the dz square orbital, ठीक है। इसका शेप एक्चुअली डबल डंबल नहीं होता, इसमें एक्चुअली एक डंबल रहेगा z एक्सिस के अलोंग, एज यू कैन सी, ठीक है। देयर इज वन ऑर्बिटल, one dumbbell along the z axis, and then there is this ring in the xy plane, ठीक है। 2D रिंग नहीं है तो 3D, but it is rested in the xy plane, ठीक है। दिस इज द dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं जिनके शेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। s का बहुत सिंपल है, p का बहुत सिंपल है, d का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नया है आपके लिए, बट इट इज स्टिल समथिंग विच यू विल बी एबल टू रिमेंबर क्वाइट इजीली, ठीक है। इसमें एक चीज जरूर नोट करना विच विल बी कमिंग इनटू योर माइंड, दैट ये z को क्या अलग से क्यों ऐसा dz स्क्वायर क्यों बनाया गया, मतलब why not dx स्क्वायर, why not dy स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बस मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट z एक्सिस is given preferential treatment, ठीक है। z axis is considered as internuclear axis, एंड उसी के लिए उसको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। ये ऐसे चूज कर लिया कन्वेंशन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो क्या हम लोग एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सिंगल एटम के बारे में। जब केमिकल बॉन्डिंग में होगा कि एक एटम, ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन का एटम आपस में आ रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम किसी तो एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, किसी तो एक्सिस के अलोंग ये ओवरलैप करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम। अब आपकी इच्छा है तो इसको एक्स एक्सिस बोल दो, या आपकी इच्छा है तो इसको y एक्सिस बोल दो या z एक्सिस बोल दो, जो भी आपका मन करे आप उसको चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इट हैज बीन डिसाइडेड कि दिस एक्सिस अलोंग विच द न्यूक्लियस आर ओवरलैपिंग, इसको z एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये जो एक्सिस रहेगा इसको z एक्सिस बोलेंगे, एंड उसी की वजह से z एक्सिस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है व्हाइल डूइंग दीज कैलकुलेशंस, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई z axis is something which you will see is given a special treatment, ठीक है। तो ये d ऑर्बिटल्स का शेप समझ में आया आपको? इज दिस समथिंग क्लियर? ठीक है। नाउ f ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है। f ऑर्बिटल्स का शेप और कॉम्प्लिकेट होता है, लीफ लाइक होता है, एंड उसके भी 7 टाइप होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन देयर आर 7 टाइप्स ऑफ f ऑर्बिटल्स।
diagrams are not important because they are too complicated for you to understand. ठीक है, अगर आपको मैं f ऑर्बिटल का डायग्राम दिखाऊंगा तो उसमें ऐसे 3 डंबल होंगे, ठीक है, और वो भी मतलब सिंपलेस्ट वाला बता रहा हूँ मैं, थोड़े जो डिफिकल्ट होते हैं वो तो और डिफिकल्ट हो जाते हैं. तो द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू देन गो इनटू दोज डिटेल्स. ठीक है, आप S, P और D ऑर्बिटल्स के शेप एंड डायरेक्शनल ओरिएंटेशन याद रख लो. दिस इज समथिंग विच इज रेलेवेंट एज पर आवर सिलेबस. ठीक है, F ऑर्बिटल के, हाँ आप देखोगे बुकलेट में भी डायग्राम नहीं दिए हुए हैं, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे. ठीक है, बट नॉट समथिंग विच यू शुड बी फोकस्ड ऑन. ठीक है, अच्छा इसमें नोटिस करना, ठीक है, इसमें एज एन इम्पॉर्टेंट नोट ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है. SPDF के बाद में G, H, I एंड और भी ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, इनफाइनाइट है जैसे मैंने बताया. देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दैट आर पॉसिबल. सो और भी आगे होते हैं SPDF के आगे G, H, I, बट वो और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, उनके शेप और डिफिकल्ट होते हैं एंड वो हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है. ठीक है, उनका इंफॉर्मेशन होना ठीक है कि हाँ हमें पता है, चलो G, H, I ऐसे आगे भी और ऑर्बिटल्स हैं, बट उनका शेप एंड ऑल क्या रहेगा, इट इज नॉट समथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर अस इन एनी मैनर व्हाटसोएवर. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आपको? So what we have done is that today we have progressed from our previous understanding of structure of atom to a very new and completely I should say different understanding of structure of atom, which is based on this concept of probability. Okay, and right now what we are doing is we are trying to first visualize that what are these regions in which electrons are likely to be present. Okay, it is likely to be found in these orbitals which have these different kind of shapes. You have spherical shaped called S orbitals, you have dumbbell shaped p orbitals, you have double dumbbell shaped d orbitals, and so on so forth. ठीक है, नाउ अब मैं दीप का डाउट एंटरटेन करता हूं. दीप ने एक इंपॉर्टेंट डाउट प्रेजेंट किया था हमारे सामने. ठीक है, हिज डाउट वाज, एक मिनट गौतम वापस से नोटिस कर लो, DXY ऑर्बिटल में डबल डंबल है. ठीक है, बट ये जो डंबल्स हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है. ठीक है, इन DXY एंड DX स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डबल डंबल है, बट दीज डंबल्स आर अलोंग द एक्सिस. ठीक है, समझ में आया? दैट्स द डिफरेंस that is there in terms of directional orientation. ठीक है, ठीक है. नाउ अब एक बार लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट दीप का डाउट एंड देन वी विल टेक आप लोगों के डाउट्स और जो आप मुझे पोस्ट कर रहे हो. वेट फॉर अ व्हाइल. सो दीप का डाउट था दैट do these orbitals coexist, मतलब are they all together present simultaneously? The answer is yes. ठीक है, around the nucleus, ठीक है, electron can be found in a small spherical region or in a larger spherical region or in a dumbbell shaped region which is along one axis or the other axis or some other axis.
or it could be found in a double dumbbell shaped region. ठीक है, something in this manner, and so on so forth. ठीक है, so these orbitals, they all coexist. Each orbital is something that you can think of as a unique solution to how an electron can be present around the nucleus. ठीक है, now having said this, ठीक है, यहाँ पर notice करना, having said this, यहाँ पर notice करना, the above discussion or shapes that we have talked about are for a single electron system. ठीक है, से हाइड्रोजन एटम के लिए हमने ये सब ऊपर ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, that around the nucleus of hydrogen atom एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, and that electron can be likely to be found in a spherical region or a dumbbell region or a double dumbbell region. It is a possibility depending upon its properties. It can be in different orbitals. ठीक है, जैसे बोर्स मॉडल में आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड there are different orbits that are present. ठीक है, and electron can be present in any of those orbits. ठीक है, naturally it will be present in first orbit, but if you provide it energy, it can excite or de-excite into other orbits also. उसी तरीके से यहाँ पर भी naturally जो हाइड्रोजन एटम होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, it will be likely to be found in a small spherical orbital in ground state, but if you provide energy to it, it can change its region in which it is likely to be found, and that region can be in dumbbell shape also. ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, एंड ऑर्बिटल के बारे में ध्यान से नोटिस करना, as I am again highlighting, it is the region inside which electron is likely to be found. ठीक है, somehow there is this misconception in the minds of students कि ये उसका कोई पाथ है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे आ रहा है. ऐसा नहीं है बाबा, बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन तो आप भूल ही जाओ. You cannot describe the path of an electron because Heisenberg's uncertainty principle prohibits it. All you can say is that the electron is likely to be found in a certain region. ठीक है, अच्छा, having said this, ठीक है, having said this कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, जो हमने ऊपर डिस्कशन करा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है. हैविंग सेड दिस, नोटिस करना हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी यही चीजें यूज करने वाले हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा मैथ्स कहती है. लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर एंड ओपन द स्क्रीन शेयर. ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी से एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठाऊंगा ताकि कोई एम्बिग्विटी नहीं रहे. ठीक है, सो लेट मी पिक अप दिस स्टेटमेंट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. ठीक है, कैन यू रीड दिस? दैट एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स presents a difficulty. The Schrodinger equation cannot be solved exactly for a multi-electron atom.
However, this difficulty is overcome by using approximated methods, and such calculation with the aid of modern computers show that the orbitals in atoms other than hydrogen do not differ radically from what are there in the hydrogen itself. तो हम लोग यही जो अंडरस्टैंडिंग है SPDF ऑर्बिटल्स की, ये हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए भी एक्सपैंड करेंगे. ठीक है. So let me copy paste this. Let's see कॉपी होता है कि नहीं होता है. अरे हो गया, वेरी गुड. सो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ. ठीक है. इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, the idea is orbitals do not differ in any radical way from the hydrogen orbitals. ठीक है. That is the key takeaway. So ये जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, these regions, even if you have multi electron system like a sodium का atom, उसके अंदर 11 electrons present होंगे, तो वो electrons ऐसे ही regions के अंदर likely to be found है. ठीक है. ये रिजल्ट समझ में आया? अच्छा, अब आप लोगों के डाउट्स लेते हैं. एक एक करके हैंड रेज करना एंड देन विल टेक योर डाउट्स. ठीक है. सबसे पहले करा है रजत ने. हाँ, एक मिनट रजत, जस्ट अ सेकंड. हाँ, बोलो रजत. रजत, आवाज कम आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलो. Hello, sir. हाँ, बोलो अब. Sir, in different orbitals, we have different directions. हाँ, That was my doubt. हाँ, these orbitals are in different directions also. इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्शन के बेसिस पे भी जो different ओरिएंटेशंस हैं वो भी बताए हैं. ठीक है. अच्छा, देन हाँ, ध्रुव तुम बोलो. Yes, sir. So my doubt was that in orbitals, do we have orbit numbers like, वो and does it next class. excite, does the electrons in it get excited or de-excited to other orbitals? हाँ, नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ मैं. ठीक है. जैसे लास्ट बोर्ड मॉडल में आपने ऑर्बिट्स को नाम दिया था ना, n equal to 1, n equal to 2, तो उसी तरीके से ऑर्बिटल्स को भी मैं आपको हेल्प करूंगा टू गिव अ नोमेनक्लेचर टू. ठीक है. देन अच्छा, फिर उसके बाद एक एक करके किस किस का डाउट आया. सबसे, अरे बहुत सारे डाउट कर दिए तुमने तो. सबसे पहले मृगांक का लेते हैं. मृगांक क्या बोल रहा है? सर, डू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व और दे जस्ट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस? रैंडमली मृगांक. We have not been able to figure out how the electrons move. Till now, nobody knows how electrons moves. ठीक है. Okay, then Saket, the most likely in s orbital followed by p, d and f. नहीं साकेत, ऐसा नहीं है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि it is likely to be found in s and not in p and so on so forth. वो डिपेंड करेगा that हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. अच्छा, अगर आप ऐसे कह रहे हो कि हाइड्रोजन एटम है और नेचुरल स्टेट में, तो नेचुरल स्टेट में वो 1s ऑर्बिटल में मिलता है. ठीक है. तो वो मैं बताऊंगा आपको in the next class. ठीक है. Then okay, हर्ष का एक और डाउट है. So haven't scientists observed the movement of electron using electron microscope? नहीं. We have not been able to observe the movement of electrons. See, even if we
वही मैं बताना चाह रहा हूँ that the Heisenberg's uncertainty principle is so profound that it even discards the concept of being able to observe the path. It says that you cannot determine the exact path because the nature prohibits it. ठीक है, sometimes it is explained in this manner, जैसे for example that मतलब ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है एंड आपको इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो आप उसको लेट्स से फोटोन से स्ट्राइक कर रहे हो, ठीक है, टू नो इट्स लोकेशन, बट अब मान लो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इधर था बट आपने फोटोन से स्ट्राइक करा तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो उसका जो पाथ था वो बाय ऑब्जर्विंग ओनली यू चेंज्ड दैट. So this is one of the profound interpretations that comes with quantum mechanics. ठीक है, इनफैक्ट जो श्रोडिंजर्स कैट वाला एक्सपेरिमेंट है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, that by knowing or by looking at the observation you have changed the observation itself. ठीक है, अच्छा, देन इसके बाद में दीप का डाउट है, डू ऑर्बिटल्स हैव अ लिमिटेड एक्सटेंड और दे एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी? नहीं नहीं, लिमिटेड मतलब पर्टिकुलर रीजन्स हैं, जैसे मतलब न्यूक्लियस से 0.7 एंगस्ट्रॉम पर ये ऐसे बाउंड्री होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड बाय 90% और मोर. दे आर डिफाइंड रीजन्स, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी तक. एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात करो तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात करो दीप, तो इफ यू आर आस्किंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो इनफाइनाइट है. ठीक है, ओके, देन हृदय का डाउट है, ऑर्बिटल्स आर रीजन्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली टू बी फाउंड. ठीक है हृदय, आर लाइकली टू बी फाउंड. अभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के बाहर भी मिल सकता है बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. Okay, then Vivek का डाउट है that I saw in this show called Genius, Einstein disproved the uncertainty principle. नहीं विवेक, ऐसा नहीं हुआ है. Heisenberg's uncertainty principle has not been disproved. हाँ, मैं देखूंगा तुम्हारा भेजा हुआ वीडियो. I will check, but it is not correct. Then ईशान का है, does speed and energy differ in each orbital? Yes Ishan, it would. We will talk about the energy part next class में. ठीक है, then साकेत का डाउट है, is HUP applicable for particles or waves also? सबके लिए applicable है. ठीक है, all right, so let me close today's lecture. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विच इज टुमारो इटसेल्फ यहीं से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल्स पढ़ेंगे. एंड आज के लिए मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस देता हूँ टू प्रैक्टिस विच आर बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगलीज डिविडेंस. वो आप लोग प्रैक्टिस करना एंड देन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और पढ़ाकर आपको और होमवर्क दूंगा एंड टुगेदर देन नेक्स्ट वीक के पहले आप वो होमवर्क पूरा करना. ठीक है, ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइज. लेट मी क्लोज टुडेज लेक्चर. क्या पूछ रहे हो सर्वेश? डू इलेक्ट्रॉन शो वेव नेचर इन ऑर्बिटल्स? हाँ, वेव नेचर से ही डिराइव हुआ है ये सब भाई. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके ही ये सब डिराइव करा गया है. देन साकेत का आंसर है, हाउ डू वी फाइंड मोमेंटम ऑफ अ वेव? साकेत, मोमेंटम इज अ पार्टिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, मोमेंटम इज अ पार्टिकल प्रॉपर्टी. अभी आप मुझे बोलोगे हाउ डू आई फाइंड इंटरफेरेंस ऑफ अ पार्टिकल? सो आई विल से कि अरे पार्टिकल का
that is a particle property. ठीक है, अब वही तो डी ब्रॉगली ने हमें बताया that this particle and wave nature are related to each other. ठीक है, मतलब वापस से देखो, मतलब तुम बार बार उसी चीज पे कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए आई वांट यू टू बी वेरी क्लियर विद द स्टेटमेंट्स. Is electron a particle? No. Is electron a wave? No. Is electron both? No. Electron shows particle like nature, electron sometimes shows wave like nature. समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड दोनों को मिक्स मत करना, मतलब व्हेन आई से पार्टिकल वेव नेचर, so don't try to think of electron as a particle going in wave form. ठीक है, वो मत करने लग जाना. हाँ सर्वेश, क्या कह रहे हो, तुम्हें डीपीपी 14 में डाउट है क्या? डीपीपी 14 में डाउट है? डीपीपी 14 हम लोगों ने कर तो ली थी, कौन सा डाउट है? मैच द कॉलम में, अरे यार डीपीपी 14, क्या डाउट है? सी ऑप्शन, E by V, मतलब E stands for total energy and V stands for potential energy. तो वो तो -1 के बराबर हो गया ना, या सॉरी -2 के बराबर. ये हमने पढ़ा तो था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी हाफ के बराबर हो गया. टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो Q से मैच करेगा ना ये. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये C का क्या मैच कर रहा है? C का P से मैच तो कर रहा है. हाँ, इसमें क्या डाउट है? समझ में आ गया ना? ठीक है, ऑल राइट, एंड लेट मी क्लोज टुडेज लेक्चर. थैंक यू गाइस.